Hello, students. Good morning, and I welcome you all in the today's session of class 9, part 2, for the topic congruent triangles or simply triangles. Okay, so in the first part, we have seen the introduction of congruent figures by taking different examples from our surroundings, our day to day life situations, and became very clear that what does this congruent figure means. Congruent figure means exactly equal, two figure exactly equal, two figure equal in their shape and sizes, two figures superimposing each other. When one is picked up and placed on other, it covers in such a way, in a nice way, exactly each other, so that it looks like one figure, not two figures. Okay, student. Now we will discuss about the congruence of two triangles. Although we have taken one example in the first part of video, that equilateral triangles, two equilateral triangles are always congruent if the length of their one sides are equal, but not for all triangles. It is easy to state the congruence of two triangles. So today we will focus on this part, that how two triangles in different situation they will become congruent. You know, the triangle has six parts, and if all the six parts are given for both the triangles, then a very small kids like 2-3 class student can compare, and as they compare in different figures, usually coming in Champak Patrika, they will say that whether these two are equal or not. So this is not our today's target. Today's target is knowing the least information about two triangles. How can we predict that the remaining parts of these two triangles will also be equal, that is, they will fully equal, they will be congruent. So knowing the least information, our scholar mathematician have given that at least we should know the three parts information for two triangles, then only we can predict whether they are fully equal or not. So let us take one by one. These are called criteria or conditions or rules for congruence of two triangles. So starting from first one, SAS congruence axiom. Now one new word is coming here, axiom, although it is not new for a mathematics students, because he or she is using it frequently. So axiom means such a statement which is universally true, always true, it needs no proof for its trueness. ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही होता है, जिसे प्रमाण की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके सही ठहराने का, इस तरह के स्टेटमेंट को एक्सियम कहते हैं। SAS जो पहला नियम है जो विद्वानों ने दिया है, जिसके सहारे हम दो ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट बना देते हैं, कह देते हैं कि ये पूरी तरह इक्वल है, तो ये एक एक्सियम है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमेशा सही होता है। क्या है इस स्टेटमेंट में? इफ़ टू sides and included angle of one triangle are respectively equal to two side and included angle of other triangles, then triangles are congruent, triangles are fully equal. इंक्लूडेड एंगल एक शब्द मैंने प्रयोग किया। इंक्लूडेड एंगल कहते हैं दो साइड ले रहे हैं तो उसके बीच का एंगल जो उसमें दोनों में जुड़ा हो, दैट इज़ इंक्लूडेड। इसीलिए तो सिंबल में भी जो शॉर्ट फॉर्म दिया गया उसमें ए बीच में डाला गया है, ताकि आप समझ सकें कि दो साइड ले रहे हैं एक ट्रायंगल का, तो उसके बीच वाला एंगल लेना है, यानी दो ट्रायंगल का दो साइड और बीच वाला एंगल क्रम से बराबर हो
दूसरे ट्रायंगल के दो साइड और बीच वाले एंगल से, तो ऐसा होने पर वो दोनों ट्रायंगल पूरी तरह इक्वल हो जाता है, कन्वर्जेंट हो जाता है। यानी बाकी के जो 3 पार्ट्स के इंफॉर्मेशन नहीं हैं तो वो अब इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल पूरी तरह इक्वल हो जाएगा। सिर्फ इतना इक्वल होने से, कितना इक्वल होने से, एक ट्रायंगल के 2 साइड और बीच वाला एंगल, तो 3 इंफॉर्मेशन होने चाहिए इक्वल। इस नियम को SAS कन्वर्जेंस एक्सियम कहते हैं। इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं यहाँ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF का, जो मैंने मार्क किया है यहाँ। अब देखिए इसमें सिंबल भी प्रयोग हुआ है, डैश डैश जिसमें है एक एक वो इक्वल है, फिर 2 डैश जिसमें है वो दोनों साइड इक्वल है, और बीच के एंगल जो मार्क किए हुए हैं वो इक्वल है। तो कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इधर ABC के लिखेंगे, इधर DEF का करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन पेयर बनाकर लिखेंगे। ऐसे पेयर को मैचिंग पेयर कहते हैं, करस्पॉन्डिंग पेयर्स कहते हैं, कहते हैं। तो ट्रायंगल ABC और DE इक्वल है, ये मान लीजिए कि दिया हुआ है। दूसरा ट्रायंगल ABC का BC ट्रायंगल DEF का EF इक्वल है, ये भी दिया हुआ है, मान लेते हैं। और उनके बीच का एंगल यानी एंगल B पहले ट्रायंगल का इक्वल है इनके बीच का एंगल यानी एंगल E के। तो ये 3 चीज़ें इक्वल हुई, यानी एक ट्रायंगल में साइड और बीच का एंगल इक्वल हुआ। तो नियम बना SAS, जिसमें 2 साइड है SS और बीच में A है, यानी वो बीच वाला एंगल है, इंक्लूडेड एंगल है। तो इस नियम से दोनों ट्रायंगल पूरी तरह इक्वल हो गए। पूरी तरह कन्ग्रुएंट नहीं बोलना है बच्चों, क्योंकि कन्ग्रुएंट का खुद ही मतलब होता है पूरी तरह इक्वल होना। आप पूरी तरह इक्वल बोल सकते हैं, बट डोंट से एग्जैक्टली कन्ग्रुएंट, फुल्ली कन्ग्रुएंट। ऑलवेज से एग्जैक्टली इक्वल, फुल्ली इक्वल और ट्रायंगल्स आर कन्ग्रुएंट। कन्ग्रुएंट बोलने से ही सब बात हो जाती है। तो दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट का अपना एक सिंबल है जो यहाँ प्रयोग हुआ है, बीच में आप देख सकते हैं, जिसमें इक्वल साइन होता है और ऊपर में एक इक्विवेलेंट का साइन होता है। तो इस तरह कन्ग्रुएंट हो गए। अब हम लोग इसके रिज़ल्ट को लिखेंगे। रिज़ल्ट में वो जोड़ा बनाकर लिखेंगे जिसकी सूचना नहीं दी गई है ट्रायंगल में, कि कौन इसके किसके बराबर होगा। इसके लिए नियम है कि वो साइड बराबर होंगे दोनों ट्रायंगल के जिसके सामने का एंगल हम लोगों ने कन्ग्रुएंट बनाने में यूज़ किया है। जैसे आप गौर करें, एंगल B को यूज़ किया है हमने एंगल E के लिए मैचिंग पेयर कन्ग्रुएंट बनाने में। तो ये दोनों एंगल इक्वल लिया गया, तो उनके सामने के साइड इक्वल हो जाएंगे। कितने होंगे ये हम लोग नहीं बता सकते और ना ही बताने की आवश्यकता है। हाँ, वो इक्वल होंगे, यानी AC इक्वल हो जाएंगे DF के। उसी प्रकार वो एंगल इक्वल होंगे दोनों ट्रायंगल के जो लिए गए साइड के सामने होंगे। जैसे हम लोगों ने BC के साथ EF साइड यूज किया कन्ग्रुएंट करने में, तो BC के सामने एंगल A है और EF के सामने एंगल D है, तो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के। उसी प्रकार हम लोगों ने फिर 2 साइड यूज किया पेयर, मैचिंग पेयर AB और इसके DE के साथ। तो AB के सामने का एंगल और DE के सामने का एंगल इक्वल होगा, यानी एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। तो इस तरह से हम लोग 3 जोड़ा रिजल्ट लिख सकते हैं, वो 3 जोड़े का दोनों ट्रायंगल में जिसकी सूचनाएं नहीं दी गई हैं। ये हम तभी लिख सकते हैं जब हम पहले दोनों ट्रायंगल को किसी नियम से कन्ग्रुएंट बना देंगे। इस रिज़ल्ट लिखने को ही CPCT कहते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स।
कि जब दो ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कौन कौन जोड़े में पार्ट्स हैं, उसको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहे। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, उसी को शॉर्ट में CPCT कहते हैं, जो कन्ग्रुएंट करने के बाद रिजल्ट हम लोग अननोन पार्ट्स दोनों ट्रायंगल का नोट करते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ओके, so hope it is clear. Now come to second condition, which is called SSS congruence condition. नाम से ही उसकी परिभाषा निकल जाती है, कॉन्सेप्ट निकल आता है। SSS साइड 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 कन्ग्रुएंस कंडीशन या क्राइटेरिया, कि ये वो शर्त है, वो नियम है जिसमें एक ट्रायंगल के तीनों साइड यदि क्रम से दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के बराबर हों तो इस हाल में दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं, पूरी तरह इक्वल हो जाते हैं, यानी उसके बचे हुए हिस्से भी इक्वल हो जाएंगे। उदाहरण के लिए हम लोग उसका पेज लेते हैं। नाउ वी टेक द पेज कंसर्न, हियर इट इज़। You see student here, if you feel problem I just put it this picture below. Okay, so here two triangles are, we have taken triangle ABC and triangle PQR and we are dealing now concept SSS. तो आप देखिए क्या लिखा गया, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB इक्वल है PQ के दिया हुआ है, BC इक्वल है QR के दिया हुआ है और AC इक्वल है PR के। ये तीन मैचिंग पार्ट्स दिए हुए हैं मान लीजिए। तो एक ट्रायंगल में क्या क्या लिया हम लोगों ने, S लिया, S लिया, S लिया, यानी SSS कन्ग्रुएंस कंडीशन हो गया। और इस नियम के तहत विद्वानों के अनुसार ट्रायंगल दोनों पूरी तरह इक्वल हो गए, यानी उसके बचे हुए इंफॉर्मेशंस भी जोड़े में इक्वल हो जाएंगे। इस बार बचा हुआ इंफॉर्मेशन तीनों एंगल्स ही है, तो हम लोग जोड़ा बनाएं एंगल्स का कि इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल उस ट्रायंगल के एंगल के साथ बराबर होगा। कितना डिग्री होगा ये नहीं बता सकते हम लोग और ना ही बताने की आवश्यकता है। सो लेट अस सी, चूँकि हम लोगों ने BC की जगह QR साइड यूज किया कन्ग्रुएंट बनाने में, तो BC के सामने का एंगल और QR के सामने का एंगल इक्वल हो जाएगा, यानी वो एंगल इक्वल होगा जो यूज किए हुए साइड के सामने पड़ता है, यानी एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल P के। उसी तरह AB को लिया था हम लोगों ने PQ के इक्वल, तो इसका अपोजिट में एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। और तीसरा AC को यूज किया था हम लोगों ने PR के साथ, तो AC के सामने एंगल B है और PR के सामने एंगल Q है, तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल Q के। ये CPCT का रिजल्ट हुआ। अब आगे से आप CPCT खुद से करेंगे। नाउ कम टू थर्ड कंडीशन विच इज़ ASA कन्ग्रुएंस कंडीशन। इसका भी नाम से परिभाषा निकलेगा, अब आप धीरे धीरे सब बात समझ जाएंगे। सिंबल देखिए, 2A है, बीच में S है, तो गौर कीजिए बीच वाले का मतलब है बीच वाला लेना, तो 2A लेंगे, यानी एक ट्रायंगल का 2 एंगल लेंगे और उसके बीच का साइड लेंगे जिसको इंक्लूडेड साइड कहेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट पूरा क्या होगा कि यदि एक ट्रायंगल का 2 एंगल और बीच वाला साइड दूसरे ट्रायंगल के 2 एंगल और बीच वाले साइड के क्रम से बराबर हों, इफ 2 एंगल एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू 2 एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स, then triangles are congruent by ASA congruence condition। ASA के नियम से दोनों ट्रायंगल पूरी तरह इक्वल हो जाएंगे। अब वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं ट्रायंगल ABC और PQR के लिए। मैं यहाँ चिन्ह लगा रहा हूँ, आप गौर करें। ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR के लिए दिया हुआ है एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल
आर और साइड बी सी इक्वल टू बीच का साइड क्यू आर के इंक्लूडेड साइड। तो नियम बना एक ट्रायंगल में ए फिर एस फिर ए, कैसे कंग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल सी कंग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आप सीपीसीटी से बाकी रिजल्ट जैसे ऊपर जाके उसी तरह आप लिख सकते हैं। नाउ कम टू द फोर्थ कंडीशन विच इज AAS कंग्रुएंस कंडीशन। इसके भी नाम से आप परिभाषा स्टेटमेंट निकालें। 2A फिर एक S, तो 2A का मतलब तो दो एंगल हो गया, और S इस बार बीच का नहीं है, इसका मतलब S मतलब तो साइड हुआ, लेकिन वो बीच वाला नहीं होगा, कोई दूसरा होगा। बीच वाले को आप इंक्लूडेड साइड कहते थे, तो ये दूसरा है तो इसको नॉन इंक्लूडेड साइड कहिए। तो क्या हो गया कॉन्सेप्ट इसका, स्टेटमेंट क्या हुआ कि एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड यदि क्रम से दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड के बराबर हों, ऐसे सामने दोनों ट्रायंगल हो जाते हैं, इक्वल होते हैं। किस नियम से? कंडीशन से। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग उदाहरण जो लिया गया है वो पेज हम लोग लेते हैं, नेक्स्ट पेज, जिसमें हम लोग ये समझ पाएंगे। यहाँ पर एक उदाहरण है, आपको फिर मैं पिक्चर नीचे कर दूँ। ये उदाहरण देखा जाए, कंडीशन 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, AAS। इसमें भी दो ट्रायंगल लिया गया है, ट्रायंगल ABC और PQR, जिसमें क्या क्या मैचिंग पार्ट इक्वल दिया हुआ है वो गौर करें आप। एंगल B इक्वल टू एंगल Q के दिया हुआ है, एंगल C इक्वल टू एंगल R के दिया हुआ है, तो दो एंगल दोनों के इक्वल हो गए क्रम से। अब तीसरा है नॉन इंक्लूडेड साइड, जो बीच में ना हो, तो बीच में तो इनके BC और QR हैं, वो नहीं हो, कोई दूसरा हो। तो जैसे ट्रायंगल ABC का AC लिया गया है और ट्रायंगल PQR का PR लिया गया है, तो AC और PR मान लीजिए इक्वल दिया है। तो एक ट्रायंगल के क्या क्या इक्वल हुए, दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड। तो कौन नियम बना, AAS कंग्रुएंस कंडीशन से ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं जिसके इन्फॉर्मेशन नहीं हैं, अब आप उसको जोड़े में लिख सकते हैं, जिसको CPCT कहेंगे। नाउ कम टू द फिफ्थ कंडीशन एंड लास्ट कंडीशन फॉर कंग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स, which is RHS congruence condition। R मीन्स RHS का फुल फॉर्म आप एक जगह और पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन में, जहाँ LHS RHS कहते हैं, वहाँ RHS का पूरा नाम राइट हैंड साइड है। वो गलती यहाँ नहीं करेंगे आप, वैसा नहीं बोलेंगे, यहाँ दूसरा अर्थ है इसका। R फॉर राइट एंगल, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड S फॉर साइड। यानी ये कंडीशन नाम से झलक रहा है कि ये कंडीशन केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट बनाने में यूज़ होता है। जब दो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल्स दिए हों तो ये नियम वहाँ यूज़ हो सकता है। क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल का राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड यदि क्रम से दूसरे ट्रायंगल के राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड के बराबर हो, तो दोनों ट्रायंगल पूरी तरह इक्वल हो जाते हैं, यानी कंग्रुएंट हो जाते हैं। किस नियम से? बाय RHS कंग्रुएंस कंडीशन से। इफ राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल्स, देन ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट बाय और अंडर RHS कंग्रुएंस कंडीशन। उदाहरण के लिए हम लोग दो ट्रायंगल फिर लें। देखिए ABC और PQR लिया गया, जिसमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q है 90 डिग्री होने के कारण, यानी राइट एंगल इक्वल हुआ। राइट एंगल के सामने वाला ही साइड हाइपोटेन्यूज होता है, तो ABC में AC हाइपोटेन्यूज इक्वल है PR के, क्योंकि PR भी इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है।
तो ये दोनों यदि इक्वल हुआ तो ब्रैकेट में लिखेंगे हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ, और एक साइड दोनों का इक्वल है, जैसे इसका ए बी और इसका पी क्यू इक्वल है, तो एक साइड इक्वल हुआ। तो क्या क्या इक्वल हुआ, राइट एंगल इक्वल हुआ, हाइपोटेन्यूज इक्वल हुआ और एक साइड। तो अंडर आर एच एस कन्ग्रुएंस कंडीशन ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आप सी पी सी टी लिख सकते हैं, जो बचे हुए पार्ट्स हैं उसका करस्पॉन्डिंग पेयर ले लेंगे। कैसे लेंगे, एंगल का पेयर लेंगे, साइड जो यूज किए हैं उसके सामने का, और साइड का पेयर लेंगे जो एंगल यूज किए हैं उसके सामने का। ओके स्टूडेंट, होप दैट कन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल्स के बारे में आपने पूरी तरह डिटेल्स में कॉन्सेप्ट लिया, और मैं समझता हूँ ही नहीं बल्कि विश्वास करता हूँ, आई डू होप दैट you all students have got the very clear concept related to congruence of two triangles, and it is much more helpful in solving the rider problem, that is exercise problem related to the triangle chapter. Okay student, thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, like and write your valuable comments so that I may include all these things in my video. If you subscribe my channel, then for each new upcoming videos you will get the notification first, so that you may have you may enjoy a lot of watching such video and doing your online teaching at your home. So stay home, stay safe. With thanks, we will meet again in the next upcoming video. Till then, it's goodbye.